Hello students, Jai Swaminarayan. Today we continue with the introduction of the construction management, unit number 1, stakeholders of the construction management. The position and role of various people involved in a construction project can be described as below. First one is architect. The architects are traditionally responsible both in pre-project or project phases, acting on the client's behalf. That means कोई बिल्डिंग को प्लान करना है तो उसमें और प्लान होने के बाद उसको सजाने में दोनों फेज में आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है. Okay, acting on client's behalf in pre-project phase, they prepare drawings, tender documents, select contractors. वो सब procedures इसको करना पड़ता है architect को. In project phase, they are responsible for checking the measurements, certification of the builds, overall project management functions. In the case of public sector, a separate engineering department for the tender preparation and contractor selection is there. पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है. ओके, सेपरेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जिसमें टेंडर प्रिपेयर होता है, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन होता है. ओके, वहाँ पे आर्किटेक्ट की मदद से नहीं होता. ओके, then next one is honor. The owner or a client may be an individual, group of individuals and group of individuals, private, public undertaking. The owner has an ultimate authority over the project. The owner is the final holder of the major decision-making power regarding material, financial, administrative aspect. That means सब में जो भी ऑनर होता है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है. एडमिन रिलेटेड आप ले लो, मटेरियल मैनेजमेंट करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ भी करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट करना है, तो उसमें ऑनर रिस्पॉन्सिबल होता है. He approves changes, if any, in the project scope or schedules. The owner controls the project resources such as manpower, funds, property. तो ऑनर क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा जो भी प्रोजेक्ट रिसोर्सेस है उसको कंट्रोल करेगा, सच एज जिसमें मैन पावर को कंट्रोल करना है, फंड्स को कंट्रोल करना है, प्रॉपर्टी कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वो सबका मैनेजमेंट कौन करेगा, ऑनर करेगा. वो जो कहेगा उसके हिसाब से सब कुछ अरेंज होगा. The owner also arranges for the proper maintenance of the work after the work has been completed. That means उसका maintenance का काम भी, manage करने का काम भी कौन करेगा, owner करेगा. Okay? Then next one is contractor. The job of contractor is important, completing the project or schedule according to the contract agreement with the client. Okay. The job of contractor is important, completing the project on schedule according to the contract agreement. जिस तरह से हमने contract agreement उसने साइन किया है उस तरीके से उसको schedule के हिसाब से काम करना पड़ता है with the client or owner and in accordance with the design drawings and specification. जो भी design drawing specification जो भी दिया है उसके हिसाब से उसको काम करना है. Okay, then next, contractor may be individual undertaking, small contractor. Okay, so contractor may be an individual undertaking small contracts or a large construction company undertaking a turnkey projects. Okay, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स ले सकता है, एंड लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्या करेगी, जो बड़ा बड़े प्रोजेक्ट्स है उसको लेगी. Then contractors, whether small or big, need a series of qualified engineers. जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उसको क्वालिफाइड इंजीनियर्स की जरूरत होती है. Some of the engineers employed by the contractor deal with office work. That means ऑफिस वर्क के साथ, एंड सच एज डिजाइनिंग, टेंडरिंग, शेड्यूलिंग. कई कई कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर होता है वो क्या काम करता है कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, ऑफिस वर्क करते हैं सच एज डिजाइनिंग, टेंडरिंग, शेड्यूलिंग, वो सब करेंगे इन द हेड ऑफिस. एंड अदर नोन एज ए engineer are
concerned with the actual execution of work. तो कई that means two types के engineers होते हैं, ऑफिस वर्क के लिए अलग होते हैं और दूसरे ऑन साइट अलग होते हैं, such as surveying, leveling, construction, bidding, etc. In some projects, the contractors may sublet part of the work to subcontracts or PT contractors. This is done because the contractor may not have the required infrastructure for the certain works. कई बार क्या होता है कि in some projects the contractors may sublet part of the work to subcontractors or petty contractors. Okay, this is done because the contractors may not have the required infrastructure for the certain work. In that means कई बार क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर भी काम करता है कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अवेलेबल नहीं होता है तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से भी काम करवाना उसको पड़ता है. इसीलिए the contractors has to execute various types of works and has to make all the necessary arrangements for the labors, machinery, materials, power connections, etc. in order to complete the project within the stipulated time and cost. That means उसको क्या करना पड़ता है, arrangement of labor, machinery, materials, उसका arrangement करना पड़ता है. कोई equipment चलाना है तो उसके लिए power चाहिए तो power का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है. वो सब अरेंजमेंट करेगा तो ही पूरा काम जो भी है, ओके, जो भी हमारा वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो प्रॉपर जो भी टाइम है शेड्यूलिंग के हिसाब से जो भी टाइम हमने दिया है वो टाइम और कॉस्ट के हिसाब से चलेगा. ओके, नहीं फॉर एग्जांपल कोई आपने कोई काम लिया है उसमें कोई भी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं है तो क्या होगा, जो भी टाइम दिया है उस टाइम में वो काम कंप्लीट नहीं होगा, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा. The contractor submits running bills for the payment based on the progress of work and materials brought at the site. That means वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या सबमिट करता है, रनिंग बिल्स फॉर द पेमेंट. जो भी प्रोग्रेस ऑफ वर्क कितना काम हुआ है उसके हिसाब से वो मटेरियल्स कितना चाहिए, ओके, वो सब का जो भी वो मटेरियल यूज करता है उसका बिल कितना काम हुआ है वो सब वो बिल्स, रनिंग बिल्स फॉर पेमेंट, वो पेमेंट के लिए बिल्स वगैरह देता है कि ये सब आपको पेमेंट देना है. ओके, जो भी हायर अथॉरिटी है, जो भी ऑनर है उसको और जो भी कंपनी है उसको. प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्ट्रक्शन टीम, ऑनर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर लीड्स टू द स्मूथ एंड efficient execution of a construction project. The proper understanding of the functions and activities of each team plays a vital role in achieving the speed, economy, efficiency and quality in all construction projects. Okay. The next one is engineer. Generally, the engineer is supposed to work as a consulting engineer, okay, with the client to complete the contract. इंजीनियर क्या है, उसको क्या काम करना होता है, तो वो कंसल्टिंग इंजीनियर विद द क्लाइंट. दैट मीन्स जो भी क्लाइंट के साथ कंसल्ट करता है, ओके, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड engineer. The engineer gives the technical services for the client. The engineer or consultant plays an important role as a unbiased arbiter acting for the client and contractor. As the construction process proceeds, the changes in the design, cost, schedule are often unavoidable because of working condition may change unexpectedly. In this position, the role and responsibilities of an engineer become important. तो कई बार क्या होता है, हमने जो भी प्लान किया होता है उसके शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलता होता है. कॉस्ट भी, फॉर एग्जांपल आप मटेरियल वगैरह लाए हो उसमें वेस्टेज आएगा तो उसके लिए कॉस्ट भी लगेगा. फॉर एग्जांपल आपको आपकी जो भी डिज़ाइन की है वो वहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है कि पॉसिबल नहीं है तो वो सब भी अंदर चेंज आएगा, शेड्यूल में चेंज आएगा. जो भी आपने शेड्यूल किया है कि भाई एक्सकेवेशन आज होना चाहिए, आज फाउंडेशन हो जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो भी चेंज आएगा. ओके,
So in this position the role and responsibility of engineers become important. वो सब change ना हो जाए तो उसकी responsibility किसकी होती है? engineer की होती है. The name of the services offered by the consultant may vary from project to project, and the consultant serves as a construction management consultant or construction supervision consultant or project management consultant. However, they are responsible for the project feasibility report, preparing the cost estimate, reviewing coordinate drawings, helping client in bidding process and execution phase of the project. Okay. Then next one is subcontractor. In large projects, the contracting firm requires adequate expertise or resources to undertake all the activities. In this situation, they employ subcontractors for some specified jobs. That means कई काम क्या है वो जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स है वो कोई काम है फॉर एग्जांपल तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर की एक्सपर्टीज है तो उसको क्या बोलता है सब कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स वेंडर्स एक्सेट्रा फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस और फॉर द मटेरियल प्रोक्यूटमेंट यानी क्या एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग that is for procurement purposes. Thus, the subcontractor or vendor or suppliers are very important party in any construction project. Then next one is the lawyer and insurer. The lawyers play a minor role or a part of the construction project. The lawyers specializing in the claim settlements disputes play an important role in domestic projects in India as well as in the international projects. In India, some of the construction firms are having a separate legal cell consisting of lawyers, specializing in construction disputes, and they also play an important role as in insurers in construction projects. That means like फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह होता है तो वो सॉल्व करना पड़ता है उसके लिए लॉयर्स रखते हैं. ओके तो कई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है इसमें वहाँ पे एक लीगल सेल होता है कंसिस्टिंग वहाँ पे सभी लॉयर्स होते हैं तो उसको इसकी मदद से जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होता है कंस्ट्रक्शन में वो सब हम कम कर सकते हैं. फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और रोल ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजर. Okay, the construction management is highly specified task which includes the various functions or phases such as planning, scheduling, organizing, staffing, directing, controlling, coordinating. First one is planning. Planning is the most important phase of the project management, which includes the defining objects of the project, okay, making the list of tasks or jobs to be performed, determining gross requirements of the materials, manpower, equipment, preparing estimates of cost and duration of various jobs and activities for the satisfactory completion of the project. Planning, that means सब कुछ आ गया. That is economic planning, then material planning, then manpower planning, equipment, machinery planning, सब कुछ planning आ गया जिससे जो भी आपको specified time दिया है उस time में आपका work complete हो. Then next one is scheduling. The scheduling is the allocation of the resources. That means आपके पास जो भी resources है उसका काम हम कम से कम कैसे use करें और कम से कम use करके दूसरे वर्क में उसको कैसे use कर सकें. That means जो भी resources आपके पास है उसका हम proper use कैसे कर सकें. That is called scheduling. The scheduling is the allocation of the resources. These resources are time, space, equipment, manpower, material, etc. In other words, scheduling is the mechanical process of arranging a plan, function, or jobs and tasks or activities of work in time order in which they are to be performed and allocating the material and manpower requirements needed at the each stage of the construction along with the expected completion of the time or time of each activity. Scheduling, that means what? जो भी आपके पास resources है, man, material,
मैन पावर है, मटेरियल है, मशीनरी है, उसका हम ऑप्टिमम यूज कैसे कर सकते हैं, और एक के बाद एक हम कैसे करें। ओके, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन में ज़रूरी रहता है एक्सकेवेशन हम कैसे करें। फिर फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन में हम शेड्यूलिंग, दैट मीन्स एक्सकेवेशन करने के बाद वो कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एक शेड्यूल बनाया होता है कि ये काम के बाद ये काम करना है, ये काम के बाद ये, कंस्ट्रक्शन में ये एक्टिविटी करने के बाद ये एक्टिविटी करना है, वो सब शेड्यूल के हिसाब से चलना चाहिए। और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका हम ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरह से काम करोगे, किस कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद किस टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, उसमें इतने लेबर्स चाहिए, उसमें इतना मटेरियल्स चाहिए। ओके, देन वो काम फिनिश होने के बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्क आप कौन सा करोगे। ओके, उसमें कितने मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। ओके, organizing. The organizing consists of dividing the whole project into the manageable divisions or sections and systematically arranging various operations by delegating specific tasks to the individuals. The relationship between the various persons, that means organized, proper organized होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी हम पीपल वहाँ पे रखते हैं, ओके, जो भी हमने एक्टिविटी रखी है उसको हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। Organization consisting of dividing the whole project into manageable divisions or sections and systematically arranging various operations by delegating the specific tasks to the individuals. The interrelationship between the various personals are established and the organizational start of the project is established by the simple flow chart. That means आपको क्या करना है, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है उसको अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड करना है, अलग अलग ऑपरेशन में, अलग अलग एक्टिविटी में डिवाइड करना है, और उसको सीक्वेंस देना है कि ये वर्क पहले में मुझे ये करना है, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में ये करना है। वो सब कुछ जो उसके लिए क्या चाहिए, दैट इज ओवरऑल जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उसके लिए जो भी कुछ चाहिए, मटेरियल, मैन पावर, जो भी चाहिए, तो उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे ये चाहिए तो वो उस टाइम पे वो मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग। The next one is staffing, includes the provision of the staff to fill the various positions created to handle the project. It also includes the formulation of the policy for recruiting the right people, arranging the staff training courses, and carrying out proper staff assessment. Staffing, that means what? Staffing includes the provision of the staff to fill the various positions. That means अलग अलग एक्टिविटीज है तो उसके लिए अलग अलग स्टाफ, ये प्रकार का स्टाफ चाहिए। ओके, जिसके पास जिस प्रकार का नॉलेज है उसके हिसाब से उसको अरेंज वहाँ पे करना चाहिए। ओके, तो जो भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है प्रॉपर टाइम पे, जो भी आपको टाइम एग्जैक्ट टाइम जो भी दिया है वो टाइम पे और उतनी कॉस्ट पे वो काम खत्म होगा। ओके, the next one is directing. Directing is concerned with the training of coordinates to carry out the assigned task, supervising their work and guiding their efforts. The directing in concerned with training subordinates to carry out the assigned task. तो आप क्या है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने के लिए आप कोई भी कंपनी में फर्स्ट ऑफ ऑल जाओगे तो आपको पहले वो ट्रेनिंग देगा। ओके, कि आपको इस तरह से काम करना है। फिर आपको जो भी डायरेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ट्रेनिंग, दैट मीन्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन देना। वो आपको डायरेक्शन देगा कि आपको इस तरह से काम करना है, तो बाद में आपको जो भी वर्क दिया है वो प्रॉपरली होना चाहिए और उसी डायरेक्शन में वो काम होना चाहिए। ओके, द पर्पज ऑफ डायरेक्टिंग इज टू मोटिवेट द पीपल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू यूटिलाइज देयर क्रिएटिव एफर्ट्स in achieving the specified objectives.
The next one is controlling. The controlling consists of regularly monitoring the actual progress of the work and compare it with the scheduled target. जो भी हमने टारगेट शेड्यूल किया है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके. जो भी फॉर एग्जांपल उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए और बोलना चाहिए कि जो भी फॉर एग्जांपल जो भी काम है वो उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपने जो भी प्लान किया है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आपको बोलना चाहिए कि भाई चलो जो भी प्लानिंग किया है हमने उसके हिसाब से चलना चाहिए. दैट इज फॉर कंट्रोलिंग. Okay, first controlling is a formal mechanism established to determine the deviation from the scheduled plan. To determine the precise effect of this deviations on the plan and replan, the reschedule is a basic plan to compensate the such deviations. तो आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा जो भी रीप्लान और रीशेड्यूल करना पड़ेगा जो भी प्लान है उसमें. ओके. फॉर एग्जांपल जो भी हमने प्लान वगैरह बनाया है, शेड्यूलिंग बनाया है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रीशेड्यूल और रीप्लान करना पड़ेगा जिससे जो भी एक्टिविटी है वो प्रॉपर टाइम पे ओके खत्म हो. कोऑर्डिनेटिंग. The coordinating is the process to bring together and coordinate the work of various departments and sections so that each department and section is aware of its role and the assistant to be expected from the other. So coordination करके काम करना, that is called coordination. Okay, जो भी वेरियस डिपार्टमेंट है, सेक्शंस है, उसको कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए जिससे जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो अच्छा हो. फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंटल एंड सेक्शनल हेड विथ टॉप मैनेजमेंट आर arranged so that the plans, problems and remedies are discussed for determining the best solution. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही आपका काम जो भी है, आपका जो भी वर्क है वो अच्छा होगा. Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the introduction of construction management unit number 1. Work breakdown structure for the various projects. The work breakdown structure is a device that clearly identifies the functional elements called the activities of the project and their interrelationship. Okay. The process of breaking the project into the identifiable major systems, their subsystems and discrete activities is called the work breakdown structure. That means कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप डिवाइड करते हो. Okay, that is called work breakdown structure or subsystems. Okay, the whole project is broken down into suitable jobs or operation. That means जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आप suitable jobs और operation में divide करते हो. That is called activities which are required to be performed for the satisfactory completion of the project. That means वो क्यों डिवाइड करना पड़ता है, बिकॉज जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट हो, टाइम पे कंप्लीट हो और जो भी आपने कॉस्ट का एस्टिमेट निकाला है उसके हिसाब से हो. इसीलिए हम ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हैं का यूज करते हैं. वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द डिग्री ऑफ breakdown of the project are as follows. First one is location of the work site, nature of the work involved. That means location of work site वो भी देखना पड़ता है. फॉर आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और ब्रेकडाउन कैसे करना है. दैट मीन्स आप जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ में कैसे डिवाइड करोगे, उसको कितना टाइम दोगे. ओके, वो सब कैसे डिसाइड होगा. तो फर्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ द वर्क साइट. लोकेशन कैसा है वर्क साइट का. द नेचर ऑफ द वर्क इन्वॉल्व. दैट मीन्स किस टाइप का वर्क है वो भी देखना पड़ता है. टाइप ऑफ लेबर टू बी हैंडल. किस टाइप के लेबर्स को आपको हैंडल करना है. ब्रॉड जनरल सिक्वेंस ऑफ द जॉब्स और एक्टिविटीज. देन आइटम वाइज कॉस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स. दैट मीन्स जो भी आइटम्स है उसका कॉस्ट कितना है. अलग अलग आइटम्स है आपके पास, उसका कॉस्ट कितना है. कॉस्टिंग डेटा रिक्वायर्ड
by the management, etc. After preparing the list of activities, the relationship between these activities is decided. That means आपके पास पूरा प्रोजेक्ट है तो किस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, या एक एक्टिविटी खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी हो सकती है, नहीं हो सकती है. ओके, देन एक एक्टिविटी आधी खत्म हो और दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन दिस एक्टिविटीज. और डिफरेंट एक्टिविटीज का रिलेशनशिप बोल सकते हैं आप उसको, एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड है वो. इज डिसाइडेड एंड अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर इन विच दे आर टू बी परफॉर्म. ओके, आपको टाइम पे जो भी प्रोजेक्ट है को कंप्लीट करना है तो आप एक्टिविटीज कैसे मैनेज करोगे. ओके, उसका सीक्वेंस डिसाइड करना, उसको अरेंज करना, वो सब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में करना पड़ता है. ओके, then next, when the project is split up in this way into various functional elements, this will not only help in preparing the network for the project but also in planning and scheduling of the activity. That means कोई भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर जो भी उसका कॉस्ट है उस पे. ओके, उससे जो भी कॉस्ट आपने डिसाइड किया है या एस्टिमेट किया है उसका कॉस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, टाइम बढ़ना नहीं चाहिए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्लानिंग और शेड्यूलिंग करना है. तो ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको उसमें हेल्प करेगा. और दूसरा, प्रिपेयरिंग द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट, आपको सीक्वेंस वाइज कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है उसमें भी वो हेल्प करता है. For example, the construction project of a compound wall may be broken down as shown in the figure. In general, a system or a project is broken down into subsystem and each subsystem into major component and so on. The breakdown is continued till the system is reduced to components or activities representing the manageable units for the planning. In general, the system or a project is broken down into subsystem. That means जो भी सिस्टम है और प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट की जो भी सिस्टम है उसको सब सिस्टम में आप डिवाइड कर सकते हो. और इस सब सिस्टम इंटू मेजर कंपोनेंट्स एंड सो ऑन. दैट मीन्स ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में सब सिस्टम में डिवाइड करना, उसको प्रॉपर मैनेज करना. दैट इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिससे आपको जो भी टाइम है और जो भी कॉस्ट है उसका उसके हिसाब से काम हो. ओके, द ब्रेकडाउन इज कंटिन्यू टिल द सिस्टम इज रिड्यूस टू कंपोनेंट्स और एक्टिविटीज रिप्रेजेंटिंग द मैनेजेबल यूनिट्स फॉर द प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को आपको सब सिस्टम में डिवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ही आप काम कर पाओगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो भी अलग अलग एक्टिविटीज है उसको जो भी प्रोजेक्ट है उसको अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करना, प्रॉपर बेसिक काम करना. ओके, जिससे आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो जो भी टाइम दिया है वो उस टाइम पे कंप्लीट हो, उसमें कोई क्वेरी ना आए. ओके, the objective is to identify discrete activities or tasks that can be planned, estimated, scheduled, executed and controlled for the completion. Okay, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई द डिस्क्रीट एक्टिविटीज और टास्क दैट कैन बी प्लान, एस्टिमेटेड. जो भी टास्क है और जो भी एक्टिविटीज है उसको प्रॉपर प्लानिंग, उसको प्रॉपर प्लान करना, एस्टिमेट करना. ओके, उसका कॉस्ट कितना जाएगा उसको शेड्यूल करना, एग्जीक्यूट करना और कंट्रोल करना. ओके, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव है. ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे एक कंपाउंड वॉल का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ओके, कंपाउंड वॉल में फर्स्ट क्या आएगा, एक्सकेवेशन, देन लीन कॉन्क्रीट इन द फाउंडेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सकेवेशन करना पड़ता है. एक्सकेवेशन करने के बाद आप क्या करोगे, बेस पे लीन कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, दैट मीन्स फाउंडेशन में कॉन्क्रीट स्प्रेड करोगे. देन नेक्स्ट क्या करोगे, मशीनरी इन द फाउंडेशन, दैट मीन्स उसके ऊपर आप क्या प्रोवाइड करोगे, मशीनरी. ओके, फाउंडेशन में प्रोवाइड करोगे कंक्रीट के ऊपर. देन नेक्स्ट क्या प्रोवाइड करोगे, डीपीसी. देन मशीनरी इन द सुपर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स डीपीसी प्रोवाइड करने के बाद क्या करोगे, सुपर स्ट्रक्चर में मशीनरी प्रोवाइड करोगे, पॉइंटिंग एंड कोपिंग. ओके, तो the work breakdown structure for the typical building is shown in the figure. Building, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, बिल्डिंग जो भी है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल
साइट क्लियरेंस एंड एक्सकेवेशन, देन साइट क्लियरेंस, एक्सकेवेशन। देखो एक्सकेवेशन में भी अलग अलग सब एक्टिविटीज आती है, तो उसको भी हमें डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो एक्सकेवेशन में फर्स्ट क्या आएगा, साइट क्लियरेंस एंड एक्सकेवेशन, देन साइट क्लियरेंस, देन एक्सकेवेशन, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ये सब करना पड़ता है। देन नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी आएगी, फाउंडेशन एंड डीपीसी, लीन कंक्रीट इन फाउंडेशन, मशीनरी इन फाउंडेशन एंड डीपीसी। देन नेक्स्ट कौन सी प्रोसीजर आएगी, सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रगिंग। देन नेक्स्ट कौन सी प्रोसीजर आएगी, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सर्विसेज। ओके, देन इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, फिनिशेस, अप्रोचेस रोड एंड कंपाउंड वॉल। ओके, फिनिशेस में कौन सी सब एक्टिविटीज आएगी, इंटीरियर फिनिशेस, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, पॉइंटिंग एंड डिस्टेम्परिंग। देन फिनिशेस में दूसरा क्या आएगा, एक्सटीरियर फिनिशेस एंड रूफ ट्रीटमेंट। ओके।